Once again, please. Sorry for interruption. So very good morning, all of you. I think all of you are settled down, and because of your permission, I am just going to start. So this is in-house training on the topic of value education, conducted by CBSE board, and RP number is given from CBSE 011441 by Saroj Kumar Shah. I myself, I'll conduct here value education training. So first of all, I would like to request all of you on the name of the God, please, all of you, sit wherever you are or otherwise stand. Stand better, you stand, and one prayer song will start. Then after we'll conduct our another program. Thank you very much. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, कर्म से है सबकी पहचान। सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान।
So teachers, some first introductory, I would like to tell you some rules and regulations are there as I have been guided by the CBSE board. I have taken the training in Tata and also I did training near about 10-15 days online classes, and we have been taught that we have to speak in the bilingual method. Right now, today I am not the part of the St. Mary School, but today I am the part of the CBSE board. So I have to follow the rules and instructions of the CBSE board. Suppose if I speak continue in English, I will be rejected. Suppose if I continue speaking Hindi, I will be rejected. So try to understand my feelings, as it is the norms and our rule regulation of our school. We have to speak only in English, but here I am not allowed. I am bound by the rule and regulation by the CBSE guidelines, and I have to use bilingual method because video is being prepared and it will be sent to CBSE boards. So if you don't take in another way that I don't want to speak in English, so I have to use both languages, because many part I have to go by the instruction the CBSE board. It doesn't matter there all the teachers understand English. So the purpose of CBSE board is to train the teachers. It doesn't matter तो all the teachers are sitting there, जितने भी शिक्षक बैठे हैं वो सभी अंग्रेजी भाषा के बहुत अच्छे ज्ञाता हो, जानते हो. They don't understand English, so I have to make them understand in Hindi also. Otherwise, it is not fruitful, and this training will be useless. When so that I have to use here bilingual method. So as I told you, today I am the part of CBSE board and conducting in-house training. So all of you try to understand both things. So first of all, as it is given, the value-based education. Value-based education. Today we are talking about the value-based education. Education is the part of any country, is the backbone of the any country. शिक्षा देश की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, और शिक्षा से ही कोई देश महान बनता है. Education is the backbone of any country and it makes any country strong. Today America is one of the strongest country. It has the education system very advanced. So we have to understand why we are talking about the value education. Education तो सबको मिल रही है, शिक्षा सबको मिल रही है. 18 साल तक बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है. फिर हम यहाँ पर एक जो प्रीफिक्स जोड़े हैं, उपसर्ग जोड़े हैं, वैल्यू, वो क्यों है? आखिर हमारी शिक्षा में कहाँ कमी है? हम क्या दे रहे हैं बच्चों को और बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं? Where the children are going? Why we are facing lot of problem in the society? What kinds of the education is there? And we have to discuss here what kind of education to be given our thoughts so that they can make their future better. So now you see what is the definition of the value education. Meaning of value-based education. It is a process of overall personality development of a student. It includes character development, personality development, citizenship development, and spiritual development. Some people think that personality is an inborn character of a child and it can never be developed or formed. पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या? वैल्यू एजुकेशन है क्या? हम सोचते हैं कि अरे वो उसके माता पिता तो बहुत पढ़े लिखे हैं तो उनका बच्चा बहुत अच्छा होगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है. द चाइल्ड्स फैमिली बैकग्राउंड इज वेरी स्ट्रांग, द चाइल्ड विल बी वेरी गुड स्टूडेंट इन द फ्यूचर. एक कहानी गलत है, ये बात गलत है. नो वन इज बॉर्न बाय कैरेक्टर. वी मेक देम वन गुड एंड बैड सिटीजन ऑफ द कंट्री. कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा माँ के पेट से अच्छा और बुरा पैदा नहीं होता है. हम समाज में उसे अच्छा और बुरा बनाते हैं. एक छोटी सी कहानी है.
एक घोंसले में 2 तोते थे। देयर वॉज 2 पैरट्स। घोंसला आंधी में गिर गया। 2 दोस्त थे, एक चोर प्रकृति का था, एक साधु प्रकृति का था। दोनों तोते को एक चोर ले गया और एक साधु वाला ले गया। साधु जो ले गया वो भजन सिखाता था, राम राम सिखाता था, अच्छी बातें सिखाता था। और जो चोर है वो ले गया, वो जब ले गया तो वही हिस्से का बंटवारा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। तो वही बात है। द सेम थिंग इज यू माइट हैव बीन सीन। एक घर में 5 बच्चे होते हैं, पाँचों के विचार व्यवहार सब एक ही समान नहीं होता। ऑल द 5 ब्रदर्स नेचर आर नॉट इक्वल। वन इज़ वेरी गुड, वन इज़ वेरी बैड, वन इज़ वेरी साइलेंट, वन इज़ कोऑपरेटिव। पता चलता है छोटा बच्चा माँ पिता की देखभाल करता है, बड़ा माँ बाप को धक्का मार देता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसका परवरिश किस वे से हुआ। हमारे महाभारत काल में अभिमन्यु का आपने सभी लोगों ने कहानी पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं अभिमन्यु की भी परवरिश, अभिमन्यु की भी शिक्षा उसके गर्भाशय में दी जा रही थी। अभिमन्यु को भी शिक्षा दी गई है। उसी तरह से वो जब इस पृथ्वी पे आया तो उसने अपना क्रियाकलाप किया, आप सभी लोग मालूम है। तो इसी तरह हम बच्चे को इस तरह की शिक्षा दें, क्या बनाएं, क्या करें कि वो एक अच्छा नागरिक बनकर इस देश में उतरे। हाउ टू टीच दैम, हाउ टू गाइड दैम, इट इज़ आवर ड्यूटी। इट इज़ नॉट ओनली वी हैव टू बी अ टीचर ओनली एंड टीच सब्जेक्ट। वी आर the social thinker, we are the nation builder, we have a lot of the responsibility and we have to think all arena। हमें चारों ओर से सोचना है, हर परिप्रेक्ष्य पे सोचना है, तभी हम एक सही शिक्षक हो सकते हैं। शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। we have a lot of responsibility on our shoulders। सभी लोग अपने अपने गुरुओं को याद करें। जब आपको शिक्षा दी गई थी, जब आपकी प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत हुई थी, आप सभी की कोई ना कोई एक आदर्श होंगे। यू माइट बी हैव बीन वन मेंटर एंड यू रिमेंबर व्हेन यू विल bow your head, when you will remember your guru, when you will remember your teacher, when you will remember your who was the beginning teacher। कहते हैं आज इसी बहाने महिला जो होती है, औरत होती है, सबसे पहली शिक्षिका होती है घर की बच्चे की। कहते हैं पढ़े लिखी नारी घर की उजियारी। तो सबसे पहले शिक्षा घर से हमारे माँ से शुरू होती है। अगर माँ पढ़ी लिखी होती है, आदर्श होती है, तो बच्चों में वो देखने को मिलता है। द चाइल्ड हैज़ बीन सीन दोज थिंग्स व्हाट द मदर टीच। फादर गोज टू अर्न बट मदर टीच द चाइल्ड। मदर मेक्स कैरेक्टर, मदर बिल्ड्स द चाइल्ड्स ऑल ओवर ऑल बेसिक फाउंडेशंस। माँ बच्चों में चरित्र का निर्माण करती है, रीढ़ डालती है, हड्डी डालती है, और वैसे ही बच्चा जन्म लेता है। आपने एक कहानी सुना होगा, एक बहुत बड़ा डाकू था। जब उसको सज़ा मिली तो मौत की सज़ा मिली, और जल्लाद ने पूछा कि बोलो तुम्हारी आखिरी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने कहा मैं दुनिया में सबसे प्यारा माँ होता है और माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया, जल्लाद माँ को सामने लाया और कहा तुम्हारी माँ आ चुकी है, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, इसके बाद तुम्हें फांसी के फंदे पे टांग दिया जाएगा, बोलो अब क्या चाहते हो। कहा कि माँ को मेरे सामने लाया जाए। माँ को सामने लाया गया, कहा माँ तुम जीव निकालो। उसने जैसे ही जीव निकाला, उस डाकू ने माँ की जीव काट दी। कहती तुम्हारे इस जीवा के कारण में आज मुझे मौत की सज़ा मिल रही है। तो शिक्षिकाएँ जो हैं, बेसिक शिक्षिकाएँ जो हैं हमारे स्कूल में, वो भी माँ का ही उत्तरदायित्व निभाती हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों में वैल्यू एजुकेशन हो, शिक्षा की नींव जो है अच्छी हो, ताकि वो एक अच्छा बच्चा संसार में बनकर के एक अच्छा नागरिक के रूप। हाँ, संजय सर कुछ बोलना चाहते हैं? एक माँ बाप का 5 बेटे या बेटियाँ होती है और 5 का व्यवहार अलग अलग हो जाता है। क्या कोई माँ बाप उनकी परवरिश में
भेदभाव किया है, या सारे शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा सभी छात्र या छात्राएं का व्यवहार अच्छा हो, उस स्थिति में उनके अंदर सारे बच्चों का व्यवहार एक जैसा क्यों नहीं होगा? अभी जैसे हम लोगों ने, संजय सर बहुत अच्छी बात है, अभी हम लोगों ने इसी बात पर जिक्र किया, 2 तोते लिया और दोनों तोते का परवरिश अलग अलग परिवेश में हुआ। एक चोर के पास चला गया, एक संत के पास चला गया। उसी तरह माता पिता तो अपने हिसाब से सारे बच्चों को एक ही प्रकार देख रेख करते हैं, पर पता चलता है कुछ बच्चे की संगति कैसी है। क्या आप 5 की संगति, एक ही घर में 4 भाई बहन होते हैं, 4 IAS बनते हैं, इसलिए कि उनकी परवरिश उसी तरह से की गई ताकि वो 4 IAS बन सकें। एक ही घर में ऐसे 2 भाई होते हैं, एक चोर बन जाता है और एक इंस्पेक्टर बन जाता है। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। वही बात है कि हमें उसकी परवरिश ऐसे परिवेश में करना है कि जहाँ पर अच्छे इन्वायरमेंट। हाँ, एक को बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं, दूसरे को घर में रखते हैं, खेलने के लिए छोड़ते हैं। अभी यही तो कल हम लोग मीटिंग में बैठ करके बातें कर रहे थे कि पढ़ाई के साथ साथ हमें बच्चों पर निगाहें रखने की, बच्चे का आना जाना कहाँ हो रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, उसको अनुशासित रखना। वी हैव टू कीप strict visual on the children, where they are going, what they are doing, and we have to inform the parents. First, it is not our right, it is not our duty to instruct them, but better to inform parents so that the parent can control the child. When the child will one day be a good citizen, he will remember his school. Yes, school has played an important role, vital role to make my career. Because of today I am here, it is my school. तो हमें ऐसा काम करना है, हमारा स्कूल जो है, our school must be become an icon. I think it is clear. अर्षित सर हमारी बात थैंक यू सर। संजय सर अब ये बोले कि 5 बेटा, 5 मतलब भरण पोषण एक साथ माँ बाप ने दिया, लेकिन 5 डिफरेंट हो गया। 5 को एक साथ क्वालिफाई करना चाहिए था। कहने का मतलब ये है, मेरे विचार से 5 भाई है, 5 का मुहूर्त और जन्म डिफरेंट टाइप पर हुआ। नक्षत्र की बात है, कोई बच्चा कोई नक्षत्र में जन्म लिया, कोई बच्चा कोई नक्षत्र में जन्म लिया, तो नक्षत्र पर जन्म करता है, वो निर्भर करता है उसके सोच समझ पर। आपका बच्चा कोई IAS बना, कोई डाकू बना, कोई कुछ बना, वो नक्षत्र में पैदा हुआ, जिस नक्षत्र में पैदा हुआ उस रंग के वो बनेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सेम होगा? एक ही नक्षत्र में सब बच्चा जन्म लिया है? नहीं। तो नक्षत्र क्यों बना? नक्षत्र प्रवृत्ति है, वो जिस नक्षत्र में जन्म लेगा उस नक्षत्र के अनुसार वह बच्चा बनेगा। तो आपको बता देते हैं, अगर आपको बच्चा पैदा करना है तो नक्षत्र पर ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू। अर्षित सर का बहुत अच्छी बात। कुछ ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। जैसा कि आरसी सर बोल रहे हैं नक्षत्र के लेकर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जितने भी महान और विद्वान पुरुष हैं, क्या वो नक्षत्र में ही, अच्छे नक्षत्र में जन्मे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है सर। नक्षत्र को लेकर ये आप जो बात बोल रहे हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ सर। एक और उदाहरण है सर, रावण को लेकर। रावण भी कोई अच्छे नक्षत्र में जन्म नहीं लिया था, लेकिन फिर भी उसे राम के तुल्य माना जाता है सर। हम लोग यहाँ सभी शिक्षक बैठे हुए हैं, हम लोग कौन नक्षत्र में जन्म लिए थे कि सब शिक्षक हैं?
Actually, the word, okay. Actually, the word is individual difference. It depends upon individuality. That's why the same born and brought, but they are different in their destiny because of their individual difference. No, it was for the fun. Very good. You spoke whatsoever it is, what your concept, what was your thought, what was inner feelings. So we teacher, we don't have to believe on that. In this way, if you leave all the children, then there is no need of any school. They will make their future on their fate. अगर हम इसी उद्देश्य पे बच्चों को छोड़ दें कि ग्रह नक्षत्र में जैसा कोई पैदा हुआ उसी हिसाब से बनेगा, तो फिर किसी विद्यालय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी शिक्षक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसको उसके भाग्य पर छोड़ दें कि तुम जैसे नक्षत्र में पैदा हुए हो, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा भविष्य वैसा ही बनेगा। सो वी डोंट हैव टू, इट इज़ ओके, आई एम डोंट क्रिटिसाइज इट, बट इट वॉज द फन ऑफ द पार्ट। ओके, वेरी गुड। सो वी आर टीचर. We don't believe any religion. We don't believe black magic. We don't believe these ethics. We don't believe any supernaturalism. We believe in truth. हम सच्चाई पे विश्वास करते हैं, कर्म पे विश्वास करते हैं, आचरण पे विश्वास करते हैं, and we always follow these things. So कभी भी हम किसी बच्चे को उसके भाग्य पर नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो आज सूरदास इतने महान कवि नहीं होते जो बचपन से अंधे थे। उनको एक अच्छा गुरु मिला कि आज इतने बड़े वो कवि बन गए। कबीर कभी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनको एक अच्छे गुरु का सत्संग मिला, आज इतने बड़े महान हो गए। इस तरह से बहुत सारे विद्वान लोग हैं जिन गुरु की कृपा से वे आज संसार में जाने जाते हैं। तो गुरु की महिमा, गुरु की कृपा बच्चे के जीवन में बहुत अहम होती है। अब हम दूसरे इंट्रोडक्टरी पार्ट पे चलेंगे। कैन आई इम्प्रूव ऑल योर टुमारोज? आखिर हम शिक्षा क्यों दे रहे हैं? What is the purpose of education? What I am thinking? What is our target? What is our aim? Is we are only teaching and we have any plan? I would like to ask from your side. What do you think? What kind must be very view that हम तो सिर्फ शिक्षा देते हैं, हमको सैलरी मिल जाए। हम तो शिक्षा इसलिए देते हैं कि भाई जीवन में कोई काम नहीं है तो वो काम करना है, कोई काम नहीं मिला तो हम शिक्षक बन गए। What is purpose? One by one, all of you speak please, because you are teacher and you must have one motto why you are giving education. Because what you do today can improve all your tomorrows. What you dream of tomorrow. Sir, if I talk about my individual, I am a teacher by choice. It is a family profession and I think that it is the best profession in which we get opportunity to build our society. Thank you. Very good. Nice. सर, शिक्षक देश बच्चों के भविष्य को बनाने वाले होते हैं, है ना? तो शिक्षक बनना एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है, क्योंकि बच्चों का भविष्य शिक्षक के शिक्षा पर निर्भर करता है कि कैसे बच्चों को गलत से सही की ओर कर सकते। शिक्षक चाहे तो बच्चों को सही दिशा दिखा सकते हैं या गलत दिशा दिखा सकते हैं। सो शिक्षक बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपका क्या व्यू है? हर शिक्षक का एक ही मोटो है कि एक शिक्षित समाज का निर्माण करना, हर बच्चों को शिक्षा दे करके। लेकिन आज के डेट पे ये देखना है कि बच्चों में शिक्षा को लेकर के कितना इंटरेस्ट है। हम सभी जानते हैं
कोई भी बच्चा यदि क्लास 10 तक पहुंच गया तो वो ऐसा मानने लगता है कि उसने PhD कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बच्चों में, आजकल के बच्चों में शिक्षा को लेकर के इंटरेस्ट जो है बिल्कुल कम होते जा रहा है। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि उनका इंटरेस्ट जा कहाँ रहा है। हर PTA में पेरेंट्स का एक कंप्लेंट रहता है कि मेरा बच्चा एनी टाइम फ़ोन में बिजी रहता है। तो भाई वो फ़ोन में देखता क्या है? गेम्स। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो हमें भी नहीं मालूम है, वो सारे गेम्स में खेल रहे हैं। तो क्यों ना हम वैसे ही एनवायरनमेंट हम तैयार करें क्लास में, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए और उसी को फॉलो करते हुए हम शिक्षा दें, तो शायद कहीं ना कहीं हम फिर से उस रुचि को उनके अंदर जगा सकते हैं। Very good. Time management, and according to time, according to situation, we have to give education. Education is not matter to impose. Education must be earned. Education must be learned. Education must not be imposed. बहुत अच्छी बात आपने कही. I am very satisfied with your answer, and I agree with you that according to atmosphere, children must be given education. This is the reason right now the high technology is brought. We have very, according to the whatever where we are giving sufficient infrastructures, and if you go to the metropolitan cities, the children are bagless education. They are coming without bag, no homework, nothing is there. बहुत अच्छी बात है. So thank you. Now what's your opinion? In my view of point, education is not only teach the things and the matter and the subject. Education is the things of the students of the learn the moral value of the things of the life. So education is not only completing this book, whatever in our syllabus or books, to teach the children of value and how to develop their personality and skill, and how the good main motto is good manners, so that they can achieve their goals in future in good way. Okay, very good. So I got some opinion about can improve all your tomorrows. What we are giving today, it is for tomorrow. कल जो हमने पढ़ा उसी को आज हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उसी को जीवन में उतारते हैं. What we learned yesterday, today we are doing it, because we are making future generation. Today what will I teach, that child will apply tomorrow. So always education is according to the future generation. We are making future generation, not in the present, but in the future. Because small tots, small children, they are learning, and that can be applied in the future. So always you think what kind of future you want. If you go according to Dr. APJ Abdul Kalam, he has dream of before 20 years, and after 20 years what he wanted, what kind of nation he wanted. According to that, he started visiting the schools, he started building up the character of the students and promoted, inspired, and today you see where the children are. Now the second part of introduction. What is value education? Now this question is, value education है क्या? Why every kid needs it? Sir. Value education we have is actually it is related to good behavior, and I think good behavior doesn't come only from school. It comes from home, society, friends, teachers, everywhere. There are many factors that affects the child. Child is affected from the family. Nowadays, parents are not giving proper time to their children. This is the most, ये जो है
सबसे बड़ा कारण है। अभी किसी भी माता पिता के पास जो है तो समय की कमी है। मम्मी और पापा दोनों वर्किंग मेंबर हैं और उनके बच्चे घर में उनको नाश्ता 12 से 1 बजे के बीच में भी कभी कभी मिलता है। जिनके मम्मी और पापा दोनों वर्किंग हैं उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है, या घर में माँ हाउस वाइफ भी है, तो ये मोबाइल का इतना इफेक्ट असर है कि एक ही ड्राइंग रूम में पापा अलग मोबाइल चलाते हैं, मम्मी अलग चलाती है, बच्चे अलग चलाते हैं। इसका असर है, दोस्तों का असर है। परिवार और शिक्षक कितना भी चाह ले, 12-13 साल का जब बच्चा हो जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अपने दोस्तों से होता है। जैसा उसका दोस्त मिलेगा वैसा उसका बिहेवियर होगा। हम 7:30 में गेट बंद करते हैं और ये कहते हैं कि तुम लेट हो और घर जाओ। क्या हमें पता है कि बच्चा घर नहीं जाता है 2 बजे तक? 2 बजे तक वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के सिगरेट पीता है। तो अगर बच्चों में एक अच्छी व्यवहार उत्पन्न करना है तो इसका प्रयास स्कूल से, शिक्षकों के द्वारा, घर में माँ पिता के द्वारा और पूरे समाज से होना चाहिए। अगर मेरा पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति मेरे बेटे को एक थप्पड़ मार दिया है, मैं ये जानने का कोशिश नहीं करता हूँ कि मेरे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति मेरे बेटे को एक थप्पड़ क्यों मारा। मैं सीधे जाकर उससे उलझ जाता हूँ। और ये चीज जो आज से आप 20 साल पहले जाएंगे, गांव के परिवेश में जाएंगे, तो आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति भी आपके बेटे को थप्पड़ मारता था और उसमें सुधार लाता था। आप अपना जनरेशन में 20 साल 25 साल पहले चले जाइए, आप गांव के बगल के आदमी के सामने, बड़े आदमी के सामने खड़ा होकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। आज तो रोज बेटा अपने बाप को गाली देता है, अपनी माँ को गाली देता है। और तो ये पूरे समाज में विकृति पैदा हो गई है, जिसके चलते इतनी बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। Very good, sir. Thank you for your opinion. I understand right now we are self-centered. We are materialistic. We are only thinking about our own. We are not thinking about the society. We are not thinking about the nation. We are not thinking about our neighborhood. Once there was a time when our whole society was one family. We were thinking all grandparents, one child's grandparent was the grandparents of the other children also. So those days are gone. Still somewhere it's alive. I can't say still it is over. It has been extinct from the society. Still it is. But we have to increase the number of those parents. We have to increase the number of those people who believe in such a concept. आज भी आप बहुत सारे घर में चले जाते हैं तो देख करके दिल खुश हो जाता है कि क्या जॉइंट फैमिली है, इतनी अच्छी परवरिश हो रही बच्चों को। तो मैं ये पूरी तरह से नकार में नहीं सकता हूँ कि समाज से विलुप्त हो चुका है। समाज में है, हमें इसकी संख्या बढ़ानी है। सबसे पहले ये देखना है कि हम हैं कि नहीं। First of all, we have to, before raising a one finger from to other, we have to see 4 fingers from our side. हमारे घर में वो चीज़ है कि नहीं, तभी हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। We always talk about the others, but we never focus, we never concentrate our own. हम अपनी कमियों को नहीं देखते, हम दूसरे की कमियों को देखते हैं। समाज में वो गंदा फैला रहा है, वो गंदगी फैला रहा है, he is doing that, what can I do it, what can I improve? I don't have to see others. If someone is spitting all around here, I don't have to spit. Someone is throwing garbage here and there, littering, I don't have to do. I have to do myself. I have to control myself. I have to be citizen, good, polite. I have to be neat and clean. I have to be maintained.
तो हमें अपने आप को, जिस दिन हम अपने आप को संभाल लेंगे, हम एक अच्छा शिक्षक हो जाएंगे, हम एक अच्छा आदर्श, आप कह सकते हैं माता पिता हो जाएंगे, और दूसरे के लिए नसीहत हो जाएंगे, दूसरे के लिए उदाहरण हो जाएंगे. वी विल सेट अ सैंपल, एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स व्हेन वी विल इम्प्रूव आवरसेल्फ. First of all, we have to improve ourselves. I am very agree with you. Now, so value education, there are the different streams, different subjects, science, math, SST, ZK, then the environment education is sports, all subjects we teach the children. Is there any purpose in the age of the science and education that why we are teaching English? Why we are teaching game? But overall, the main object of subject is to development of a child. Overall development of the child. So now my mic goes to the sport teachers. With the help of the sports, what kind of they want to change in the children? Thank you, sir, and good morning, everybody. As we know, sports is a part and parcel of the education. It's a co-holistic activities or co-holistic part of the education. Whenever we take the name, the word education, it's a long way of a spectrum. Through education of sports, we are giving a stamina, a boost up to be a human being. The basic part of the education is to be a human being. If a person becomes a human being, it's a real education. You can see the helping hand of sports person. They have team spirit. They have a well disciplined. You can see the students well disciplined and always ready to do good for the society. Maximum the sports persons, you can see they are working for the welfare of the society or welfare of the world. Here I would like to share value education, not its parts of my sports. Actually, the value of this education is different according to the time, according to the situation and the places. It changes. Whatever our generation is thinking about a value education, and my ancestors and the coming generation, the value of education is different. Different education. Yes. Whatever we are thinking, it's wrong, it's good for the coming generation. So, according to the time and place, we will define the value of education. If a doctor is doing a research on any topic, he has killed so many animals, and sometimes he used his serum on the human beings also. And you ask a doctor how many lives he has taken in his life. That is value education. He is trying to do good for the society, but on the way he has killed so many people or so many lives.
So, according to the situation, according to the position and time, we will define the value of education. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your opinion, your guidelines, and you very good. In education, sports play a vital role because with the help of sports, one child learn how to bear the stress, how to cooperate, how to be disciplined, how to be honest, and these are the part of education. These are the part of one life. जीवन की सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि एक अच्छा ईमानदार बने, परिस्थितियों का सामना करे, दुख और सुख में जो समान बने रहे, वही शिक्षा है, वही सही शिक्षा है। जो दुख में घबरा जाए और सुख में उन्माद की ओर चले जाए, वो सही शिक्षा है। और ये स्पोर्ट्स जो है हमें यही सिखाती है कि किस तरह से अपने आप को सामंजस्य करें, किस तरह से अपने आप को बैलेंस करें। दुश्मन की जीत पर भी हमें मुस्कुराना आना चाहिए, और यही बात है। और अपनी जीत पर भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार और जीत जीवन का एक हिस्सा है। According to me, value education है बच्चे भी किताबी ज्ञान के साथ साथ, किताबी शिक्षा के साथ साथ में व्यवसायिक ज्ञान का भी विकास करना चाहिए। जैसे गांधी जी ने कहा था, एक बच्चे को ऐसी शिक्षा दो और उसके जीवन में व्यवसायिक ज्ञान, किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवसायिक ज्ञान को भी दो, ताकि आगे चल करके वो इस लायक बन जाए कि वो कुछ अर्न कर सके। बहुत अच्छी बात आपने कही, और यही वर्तमान की इसकी जरूरत है। आज वर्तमान में प्रधानमंत्री जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, NEP 2020, same motto is we have to make the children self-dependent, not dependent। आप देश की बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ब्रेन है, उसका कारण यही है। हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां हैं कि सभी को रोजगार मुहैया नहीं करा सकते, सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी बहुत है, अवसर बहुत है, पर अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। यही वजह है आज शिक्षा में इतनी बड़ी बदलाव आई है। आज सरकार अपनी ओर से हर प्रयास कोशिश कर रही है कि बच्चे आत्मनिर्भर बने। आपका बहुत अच्छा है, आप बात में बहुत अच्छी लगी। गांधी जी है सरल बात, make the child self-made, and this is the reason we have taught the handicraft industries. And that time, the people who are happy, people who are not taught this, कहते हैं जब खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आज जो समाज में इतने क्राइम्स हैं, इतने जो डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, इसका कारण यही है दिमाग खाली है। तो बच्चे स्नैक ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, घर की लड़ाई कर रहे हैं, सीना धमकी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चे को 2 रुपये कमाने की हुनर आ जाएगी, when the child learns to this art, he will be positive. So we have to make the children how to earn by guidance. So now other subjects I would like to relate with the education, with the education and for the children. Now it is a time of the math teacher. I would like to request math teachers, please give your opinion. What is your aim? What you are thinking? What kind of your mathematics you are teaching to the child, and what your idea? Mathematics teachers are here. I would like to request, please. इसको देखते हुए जो
इससे पहले जो पॉइंट था उस पर मेरा दिमाग थोड़ा घूम गया। जैसे आप बता रहे थे कि व्यवसायिक शिक्षा, अगर हम इस सिनारियों में देखें, प्रेजेंट सिनारियो में, तो देखेंगे people are having knowledge, education, they are having much more than us, जैसे चोर लोग, जैसे हम लोग देखते हैं कि स्कैम करते हैं लोग, है ना। ऑनलाइन फ्रॉडिंग जो अभी जो चल रहा है उसको उनको देखें, वो लोग भी शिक्षा ले रहे हैं, उनसे ज़्यादा ज्ञानी है वो। 1 मिनट में आपके अकाउंट को 0 कर देते हैं। सही बात है, हमसे ज़्यादा नॉलेज है उनको, शिक्षा है। लेकिन जहाँ हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं तो ये हम उसको नहीं कह सकते हैं कि उनकी एजुकेशन में वैल्यू है। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज नॉट दैट, मेरा मानना है। भले उनके पास ज्ञान है, एजुकेशन है, बट उनके ज्ञान में, एजुकेशन में वैल्यू नहीं। वैल्यू मीन्स सम ethical values, moralities. If the person is not having these values, that means these values, if the person is not having, he will live a kind of a life that is normal to the person or human being is. So we cannot say that better human being. We cannot say. Yes, very good, Mr. Sir. Thank you. I'm not agree with you, sir, whatever you have told. Because latest news I'm telling about the Russia-Ukraine war. A special private army Wagner is working, and the main person is to develop that private army is Americans. Americans have developed that private army. They are earning $8.11,000 every month. They have a big strength of earning money. And all these states, even Russia, is using that army. And so many two, three private armies, their history is they are thieves, they are robbers, and now these countries are using them. How they are earning money? By cheating. But this age is giving preference to that. So I'm telling, according to the time and place and situation, value education is shared. That Russia is taking help of that Wagner army. And now Wagner army, before a day, they are going to attack on Russia. So according to the situation, time, this value education is changing. So teach your students, use your brain according to your time. You have to live in this world. For existence in this world, according to the situation, you have to love. People, those who are in a scam, sir, people, those who are in a scam, think about these people. They are genius, but not getting opportunity to be a computer operator in government services or private sector. So they are using their money. And think about that money they are using for their families, for the welfare of the family. So what is wrong in this scam? I have
education, value should be created. Education helps to take the individual to take the proper decision. It will not be based on what should be, but it is on the what want to be. Why have this country so ruling the world? What about this country? You are not agree. I'm happy you are not agree. But think about the countries those who are ruling the world. America, Russia. Let's speak one by one. Let's speak one by one. I would like to support Vishwas. See, I would like to support Vishwas. Sir, you are telling changes. Just you see today's news or day before yesterday, two SPs and DM. We consider them very intellectual people. Okay? ये लोग रेस्टोरेंट में जाकर के मारपीट करके आ गए गुंडा जैसा, आप सारे के सारे सस्पेंड कर दिया गया। 10 आपको मैं वीडियो में गिना सकता हूँ। IAS जो करप्शन के मामले में जेल में करोड़ों रुपया उनके खर्च, उनके पास क्या की कमी है? ये बोलना चाह रहे हैं कि इतना हाईली एजुकेटेड होने के बाद बिकम डॉक्टर, मैं दर्द होता है किडनी निकाल के बेच देता है। तो दे हैव मोर नीट क्लियर करके आया है वो, इन्वेस्ट करके आया है, लंदन में पढ़ के आया। हम इस तरह की बात पहले एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे इस तरह से आगे जाएंगे तो हम ये बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल इश्यूज में वो दूसरी बात हो रही है। And you are talking about international issues, Russia and Ukraine. Sir, why you do not want to make your children like your Putin and Barack Obama and Mr. Reagan and other personalities of the world? Those who are ruling this world. They are doing. Why are they making your children to work for the sun? Let them work according to the situation. This is the best way. ऐसा बात के सर शिक्षा जो है ऐसा हथियार है जो सही को सही और गलत को गलत हमेशा बताता है। ये चीज होना चाहिए। वैल्यू एडिशन क्या है सर? हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका महत्व हम अपनी लाइफ में यूज करेंगे। ठीक है, क्या गलत है क्या सही है उसको एनालाइज करने का क्षमता हमें जो है वो हमारा रियल लाइफ है, उसके अनुसार हमको तो हम वो हमारा शिक्षा का नहीं करेंगे। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ कि सर हमारे एकेडमी के साथ कभी एक इंटरप्रेन्योरशिप स्किल ताकि बच्चा वो एकेडमिक सीखे, वो एक आगे नहीं हम ले लिया और हमारा सारा ये हमारा एजुकेशन है। तो दैट इज ट्रू। इस तरह का वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए सारे यूनिवर्सिटी इस तरह का है। थैंक यू सर। Give me one chance. See, this is India, okay? And India works according to the constitution. And if we talk about constitutional values, we mostly talk about constitutional values. Constitutional values can follow other values. We are not following American constitution or Russian constitution. We follow Indian constitution. That's why we talk about Indian values, Indian constitutional values. Okay, listen. Overall, I want to say two words, that is culture and civilization, right?
civilization depends on the changing, keep on changing. But the culture, it is a combination and continuity of the all positive value or positivity of the every civilization which we carry later on. So the value, it is our cultural part, and the education and the development, whatever you are saying, it is the part of civilization. So this is the main thing. Okay, so it is written that why value education? What is value education? Value education is that overall development. What we are talking, our academics, our economics, but where it is our culture, where it is our ethics. So that is that. Why every kid need it? Because we make a bright, a different livelihood future. So that's why it is needed, and that's why it is now going to be part in our education system. Thank you. Well, thank you very much for just your opinion. So you see, value education is very broad, very broad sense will go. There is no end. Hundreds of the students are there. हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, विश्वास करने की बात है, और बात है कि हम शिक्षा दे रहे हैं। Very highly educated they are, judges are there, architects are there, very good officers are there, young officers are there, but they are corrupt. बहुत साधारण विदेश के एग्जाम्पल देता हूँ, बालासोर के दुर्घटना, किसी न किसी व्यक्ति की वजह से हुई होगी, किसी न किसी इग्नोरेंस की वजह से हुई होगी, किसी न किसी की नैतिकता की वजह से कभी हुई होगी। उसने अपने कार को इतना लापरवाही या देखी रूप में किया, उसने सिग्नल को ऐसे करके ऐसे रुक लाइन में दे दिया कोरमंडल एक्सप्रेस को कि रुक लाइन से जाके वहां गाड़ी से टकराई और वो ट्रेन टकरा करके हजारों लोगों की जान ले ली। इट इज कॉल्ड नैतिकता की कारण। देयर वाज लैक ऑफ वैल्यूज। बहुत सारे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है जिससे दूसरे की जान चली जाती है। आप बहुत सोशल मीडिया में देखते हैं, एवरीडे यू वॉच सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर, बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द इंजीनियर, बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द अदर पीपल हु लव देयर लाइफ। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन दे गॉट? Very recently I was traveling that train from, I was going, I guess, Howrah to Guwahati. I was going the train, a group of soldiers came and they started hitting the clock of getting, making tea. मैं कहा सर आपको सब लोग पढ़े लिखे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी जा रहे हैं, एक पॉइंट किसके लिए है? घर से तो मोबाइल चार्ज करने के लिए है, तो आप पानी गर्म करने जा रहे हैं सर, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? एक आई 1500 वाट की है सर, आपकी मोबाइल चार्ज कितनी होती है? 2.5 वोल्ट्स की होती है सर। बिकॉज ऑफ fault, because of sparking, it could be catch fire in the train and thousands of people lost life. So it is called the value education. शिक्षा तो है पर ज्ञान नहीं है, नैतिकता की कमी है, लापरवाही है। We have to improve this world. We have to rectify all these things. We have to make the character-wise very strong. We have to build their character strong so that they enjoy their life. Ultimately, what happens? One has very high post, IAS officers, whereas government is providing everything. इससे पहले हमने आपको एक उदाहरण दिया कि बहुत बड़ा डॉक्टर था जिसके पास पैसे की कमी नहीं थी, जब उसकी जान जाने लगी, फांसी पे टांगे लगा, उसने कहा कि मैं मां करूँ जीवा काट जो क्योंकि इसकी मां ने इसको रखेट कर दिया। तो हमारी जो शिक्षा है, our education must be in such a way that the child must not divert from the track. हमेशा उसको महान ना बनाए, लेकिन हम उसको अच्छा इंसान बनाए। मैंने जीवन में कभी उद्देश्य नहीं रखा मैं अपने बच्चों को बहुत महान बनाऊंगा, लेकिन मेरा सबसे पहला उद्देश्य होता है कि उसे संसार में अच्छा इंसान बनाना।
यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है, यही शिक्षा है। और हम सभी गार्जियन हैं, कोई जरूरी नहीं कि अविवाहित, अगर आप विवाहित हैं तब भी आप बहुत सारे बच्चों के शिक्षक हैं। आप उसके माता पिता के लिए, और आपका ध्येय यही होना चाहिए, जो एक मस्त मैं जब भी क्लास में जाता हूँ, I don't teach, I give very less time on my subject. Most of the time I give them moral education, because ultimately the purpose of education is to make you good citizen. These are only the means. तो उसी तरह है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन सबका उद्देश्य होता है जीवन को शांति देना, मोक्ष की प्राप्ति करना, गेट salvation. Same way it is education, different subjects are there, but the motto is to make a good citizen, make a good human being. This is the value of education. We don't have to teach science, we don't have to teach maths, we don't have to teach other computers, weird ones. What? We are making machines. There is no heart, there is no sense, there is no value, there is no respect. हम कहाँ ले जा रहे हैं बच्चों को? किस दिशा में ले जा रहे हैं? समाज को क्या दे रहे हैं? क्या बना रहे हैं? हमें इन सब पर ध्यान देना है। नई शिक्षा नीति इसी पर बात कर रही है। NEP 2020 is talking on this only particular topic, particular points. What kind of education should be given to the children? We are giving value-based education. Teach, complete syllabus, cover it. What we are doing? हमने बच्चों को सिखाया क्या? सिलेबस पढ़ाने से बच्चे का भविष्य बन जाएगा, सिलेबस कंप्लीट करने से बच्चे का भविष्य बन जाएगा, किताबें खत्म करने से बच्चे का भविष्य बन जाएगा, उसका जीवन आपने अधिकार में किया। आप सौभाग्य में बैठे, इससे बेहतर है कि आप सौभाग्य में बैठे हो किताब के साथ। क्या आपसे बात करते हैं करिकुलम पूरा करने की, कोर्स पूरा करने की, किताबें खत्म करने की। Give them children importance of education. हम इसकी बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कभी हमारे सर ने कहा कि शिक्षा में सच बोलने की हिम्मत नहीं, तो आपकी शिक्षा का जो शिक्षक सच नहीं बोल सकता वो शिक्षक नहीं है। शिक्षक में सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और हर परिस्थितियों को सामना करने की आप में ताकत होनी चाहिए, तब आप शिक्षक हैं। यदि पैसे की पीछे भाग रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, चमचेगिरी कर रहे हैं, डर से जिंदगी जी रहे हैं, you are not teacher. Better you leave this and sit on the vegetables market, fish market, be a fish monger. What will you do? You are not teacher. You can't do anything to the child. अभी हम सबसे पहले यहाँ करना चाहेंगे कि बच्चे झूठ क्यों? क्या आप उस झूठ के कारण को जानने का कोशिश किए? अगर कोई काम उसके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हम रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, तो बच्चे झूठ बोलते हैं, शिक्षक भी झूठ बोलते हैं। और वो कब झूठ बोलते हैं? हमारी इस महंगाई के दौर में हमें इस परिवार को चलाने के लिए 70 से 75 हजार रुपये की जरूरत पड़ती है या 50 हजार रुपये की जरूरत पड़ती है। हमें स्कूल देती है 25,000 रुपया। अगर हमसे बोलते हैं संजय ट्यूशन पढ़ाते हो, हम बोलते हैं नहीं, लेकिन हम पढ़ाते हैं। एक तरफ हमारा स्कूल की के प्रति सच्चे ईमानदारी से काम करना हमारा धर्म बनता है, तो दूसरा फर्ज मेरा अपने परिवार के प्रति भी है कि मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकूं। इसके चलते मैं स्कूल से जाने के बाद 6 घंटे से 8 घंटा
नहीं है। बच्चा झूठ बोलता है, कहाँ से झूठ बोलना सीखता है या कहाँ से वो गलत व्यवहार करना सीखता है। बच्चा घर में खाना नहीं खाता, नाश्ता नहीं करता, माँ बोलती है बेटा 5 रुपया ले ले और नाश्ता कर। बच्चे की तो आदत पड़ गई, 5 रुपये दोगे पड़ी तब मैं 1 रोटी खाऊंगा। कहाँ उसको 5 रुपया देना है और कहाँ नहीं देना है, इसकी डिसाइड है। और झूठ बोलना समय के हिसाब से कहीं सही है और कहीं गलत है। कहीं वही झूठ सही है, आपके हिसाब से गलत हो सकता है, मेरे हिसाब से सही है। मैं चोरी किया हूँ, लेकिन क्यों चोरी किया? अगर मैं 3 दिन से भूखा हूँ, होटल के पास सिंघाड़ा रखा हुआ है, मैं 1 सिंघाड़ा चोरी करके खा लिया, एक चोरी नहीं है। वो मेरी जरूरत थी, मैंने खाया, आपने पकड़ा हमको वो भी नहीं। आप बात करती हैं individual your problems, all of we are also facing in the journey. Anything given for me and for you, all we are can know each other. कि हम कहाँ पर हैं, हमारी आय है, हमारी मेहनत है। मैंने तो नहीं जानती है, वो सभी जानती वो अपनी जगह पे है। और वाकई आपने कहा तो दंड की प्रक्रिया जो है इसी आधार पर होती है, कौन कैसा अपराध करता है उसको करा कर होता है। तो पता चलता है चोरी करने वाले को फांसी और मर्डर करने वाले को फांसी हो जाती है। तो अपनी जगह पे है। तो हम लोग गलत तरीके से बात कर रहे हैं, गलत तरीके से अभी एक पुलिस ऑफिसर You see, one here picture you see, I have taken. The child is very highly educated. Very good education the child got. He is the son of an officer. Father is very good post. But the child is got blind. He is arrested. There is a gang. कैसी शिक्षा दी गई, कैसी परवरिश दिया गया कि बच्चे ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। हमें इस चीज को रोकना है, सिर्फ शिक्षा नहीं देना है। These children are the product of those schools where there are the millennials children are studying. Lakpati children are studying. Where only certificate is given, but not education. हमारा काम है शिक्षा देना, डिग्री नहीं पाना, सर्टिफिकेट नहीं पाना, डिग्री की दुकान नहीं करना, सबको सर्टिफिकेट नहीं करना। हमें समाज का निर्माण करना। We have to construct a good society. We have to live a good nation, not to produce such type of children. यही बात, इसी पे बात करना है, इसी पे बात चल रही है, इसी पे चर्चा चल रही है। यही हमारा आज का उद्देश्य है। गर्ल्स एजुकेशन हम क्या पढ़ा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ताजमहल सब देख रहा है। क्या ताजमहल की नींव को किसने बात की? ताजमहल की नींव कितनी नीचे है, उसकी नींव कितनी मजबूत है और किसकी बनाई गई है? हम ताजमहल की सुंदरता को देखते हैं। पर ताजमहल आज जो टिका है, लाल किला आज जो टिका है, उसकी नींव बहुत मजबूत है, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो वी हैव टू गिव द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अमंग द चिल्ड्रन। हम सभी के बच्चे, बहुत लोग बच्चे ऊपर पढ़ रहे हैं, हम उनके साथ भी वही व्यवहार करें जो अपने बच्चे के साथ करें। हमारा कहना ये ठीक है, पर्पस हमारा ये है। We don't have to cover the syllabus, we don't have to complete the syllabus, we have to look after the child. We are making them, we are sampling just like a plant, so that children one day will grow up and it will give fruits. जो कल बोया वो आज हम काट रहे हैं, आज हम जो बो रहे हैं वो कल काटेंगे। जैसी समाज की नींव डलेगी
वो शायद बनेगा। और हम लोग बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के चल रहे हैं। नहीं तो काम तो बहुत सारे हैं। Why the teachers called the ideal teachers? Why teachers are called respectful, noble teachers? Teachers' profession is very noble. Why it is called? The reason is like the people thought about those things. What is the word noble? Money, 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 everything is money. In my career, जितने मेरे पास सर्टिफिकेट इनसे ज़्यादा मैं स्कूल छोड़ चुका हूँ सिद्धांत। I never compromised with the management. I never sold myself. मैंने कभी अपने आप को बेचा नहीं किसी के पास। तो 30,000 और 25,000 में काम करता। लेकिन मैं देश को बनाऊंगा, समाज को शिक्षा दूंगा। मैं देश का हिस्सा हूँ, समाज का हिस्सा हूँ, राष्ट्र संपत्ति हूँ, तुम्हारा नाम ये रबर समाज में चला। हाँ, हमारे ऊपर हंसते हो गए कितनी जगह लड़के मार लड़के खा रहा इधर से भटक रहा क्यों तुम्हें सारू भी आता मुझको जो चाहिए रानी के घर चाहिए बदल पर पकड़ा चाहिए मुझे संपत्ति नहीं जमा करना मुझे एक अच्छा समाज दिलाया और मैं उम्मीद करता हूँ हम सबका लक्ष्य यही होना चाहिए। हम लोग स्वार्थ के लिए स्वार्थी बैठे चर्चा होगी।